Let's talk about Chris Caranthi's one-act play, The Refund. Chris Caranthi was a Hungarian novelist, playwright, short story writer, journalist, playwright, poet, journalist, and translator. This play was written in 1938. Of course, he won recognition from some of his other literary works also. Just as you write like this, a trip around my skull and professor, chains, capillaria, etc. Now, Refund is a replay. It's a hilarious comedy, bringing out Caranthi's extraordinary sense of parody and wordplay. Now, as such, if we see, this play is an absurd play, है ना? Absurd का मतलब अजीब सा है, नॉनसेंस सा लगता है, बेतुकी सी बात लगती है ना? अभी आप स्टोरी में देखोगे आपको पता चलेगा कि क्यों इसको absurd कह रहे हैं, है ना? कि एक 40 years old man who is not able to settle in life, he doesn't get any job, उसको कोई जॉब नहीं मिली, अगर कोई मिली भी तो उसमें वो कंटिन्यू नहीं कर पाया, कोई बिजनेस किया तो वो भी नहीं उसका सेटल हो पाया, तो ही इज गुड फॉर नथिंग, है ना? तो he comes back to his school to get the refund of his fees. He wants to go back to that school where he had studied during his childhood. जहाँ पर वो स्कूल टाइम में पढ़ा था, वहाँ उस स्कूल में वापस आता है और प्रिंसिपल से अपनी जो भी उसने 12 साल वहाँ स्कूल में लगाए उसकी फीस वो डिमांड करता है. तो दिस इज अ टोटली एब्सर्ड सिचुएशन, है ना? तो ये बिल्कुल अजीब सी बात है, इसलिए हम इसको एब्सर्ड प्ले करते हैं. बट एट द सेम टाइम इट इज ए सैटिरिकल प्ले आल्सो. सटायर है, व्यंग है. व्यंग किस तरह से है कि प्रेजेंट जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर व्यंग है कि ये कैसी शिक्षा दी जा रही है कि जो स्टूडेंट्स को किसी लायक नहीं बनाती, इस तरह से नहीं बना पाती कि भी स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में कहीं कुछ सक्सेसफुल हो पाए अपनी लाइफ में, फाइनेंशियली या अदरवाइज एक मेच्योर बन सकें, एक फाइनेंशियली एक स्टैंड कर सके, आर्थिक रूप से वो मजबूत बन सकें. So that's why it is an absurd and satirical play. So it satirizes the present day education system which doesn't prepare students for their career. Of course, it's full of humor also. It's a farcical play, है ना? Which deals with an unusual situation. Unusual मतलब अजीब सी, जो अक्सर नहीं ऐसी घटना घटित होती, वैसी सी सिचुएशन दिखाई है. So let's talk about the storyline. The play is about a former student of a school in Hungary named Westerkopf. In German, Westerkopf means waterhead or an eccentric person. Eccentric मतलब अजीब सा व्यक्ति. He is 40 years old and he is unable to get any job. Even if he gets a job, even if he succeeds in getting a job, he is not able to continue it for a long time. So wherever he goes, the people consider him good for nothing. And he has not learned anything in life. He feels that he has not learned anything worth in school. उसने स्कूल में कोई काम की बात नहीं सीखी. Once he meets his old classmate, leader, क्लासमेट मिलता है उसको रास्ते में, गली में, and when he tells him about his investment in foreign exchange and Hungarian currency, Westerkopf expresses his inability to understand them. वेसरकॉफ को समझ ही नहीं आता कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है या हंगेरियन करेंसी के बारे में. तो ही स्टार्ट्स आस्किंग अबाउट फॉरेन एक्सचेंज. उसका फ्रेंड जो है लीडर, ही टेल्स हिम कि भाई अगर वो इतनी छोटी सी बात के बारे में नहीं जानता तो इट शुड बी बेटर दैट ही शुड गो बैक टू हिज स्कूल एंड गेट रिफंड ऑफ द फीस पेड बाय.
उसको ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है ना. He goes back to his school in which he had studied and he demands a refund of his fees which he had paid. He claims that he had not learned anything in that school and is ready for the re-examination to prove that he has not learned anything. है ना. वो कहता कि मैं तो दोबारा एग्जाम देने के लिए तैयार हूँ, ये प्रूव करने के लिए कि मैंने इस स्कूल में कुछ नहीं सीखा. वो कह रहा है कि री एग्जामिनेशन होगा तो उसका क्लेम जो है वो प्रूव हो जाएगा दैट ही हैड नॉट गेन्ड एनी नॉलेज, ही हैड नॉट गेन्ड एनीथिंग इन दैट स्कूल. द प्रिंसिपल इज टेकन अबैक. प्रिंसिपल तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि भी ये क्या बात हो गई, कैसी सिचुएशन उनके सामने आ गई. ही डिस्क्राइब्स द मैटर विद हिज टीचर्स. ऑल ऑफ देम आर पजल्ड, क्योंकि ऐसा तो केस कभी आया ही नहीं कि जहाँ पे बच्चा जो 40 इयर्स ओल्ड मैन बन गया वो रिफंड लेने आ रहा हो कि उसने कुछ सीखा नहीं. लेकिन वहाँ स्टाफ में मैथ्स का टीचर जो है वो बहुत कहीं क्राफ्टी है, स्किलफुल है, एफिशिएंट है. ही सजेस्ट दैट ऑल द टीचर्स मस्ट एंश्योर दैट वेसरकॉफ पास इन द एग्जामिनेशन. दे शुड टेक द री एग्जामिनेशन. लेकिन वेसरकॉफ जो जवाब मर्जी दे, गलत दे, नॉनसेंस दे, लेकिन उनको पेशेंस से काम लेना है और उन सब ने ये प्रूव करना है कि भाई वो गलत नहीं बता रहा है और वो पास है ना. अदरवाइज तो क्या होगा कि ऐसे और बहुत से स्टूडेंट्स आएंगे कल को, दोज हु विल डिमांड रिफंड. सो ऑल एग्री टू द सजेशन. So while Westerhoff is determined to fail, the teachers are equally determined to make him pass. तो सिचुएशन क्या है कि वेसरकॉफ ने तो फैसला कर रखा है कि उसको फेल होना है, टीचर जो भी पूछेगा उसने गलत जवाब देना है ना. और टीचर्स ने ये डिसाइड किया है कि चाहे वो गलत जवाब दे उन्होंने उसको पास करना है ना. तो सिचुएशन इज क्वाइट फनी आल्सो, इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग आल्सो. तो ये सिचुएशन बहुत इंटरेस्टिंग सी, फनी सी लगती है. द टीचर्स अंडरस्टैंड that Westerkoff's objective is to fail in the examination and their objective is to pass him in the examination. Whatever answer Westerkoff give and ensure that he passes. So the re-examination begins with the history teacher asking him about the duration of 30 years war. हिस्ट्री टीचर सबसे पहले एग्जाम लेता है और वो पूछता है कि 30 years वॉर की क्या ड्यूरेशन है ना. Westerkoff replies that it lasted for 7 meters. वो तो ड्यूरेशन पूछ रहा है और वो मीटर में रिप्लाई कर रहा है. वो कहता है कि it lasted for 7 meters and all the teachers unite to prove him correct. Similarly, the physics and geography teacher also ask him questions. है ना. तो ज्योग्राफी और फिजिक्स के टीचर भी जो क्वेश्चन पूछते हैं वो सब गलत जवाब देते हैं है ना. he gives ridiculous answers, वो फनी से जवाब देता है उनको. but the teachers are all set to justify his answers. finally the mathematics teacher comes. लास्ट में मैथमेटिक्स टीचर की बात आती है. he asks him a meaningless question. नॉनसेंस सा बेतुका सा उससे सवाल करता है और वो भी उसका नॉनसेंस ही जवाब देता है. Westerkoff gives a meaningless reply. The mathematics teacher declares that he has failed since he has given a wrong answer. कि वो फेल हो गया क्योंकि उसने गलत आंसर दिया. Westerkoff rejoices over his victory. Westerkoff बहुत खुश हो जाता है कि चलो अब तो मेरी जीत हो गई. The mathematics teacher then asks him to calculate the amount of money which he expects to be refunded to him. फिर मैथमेटिक्स टीचर उसको कहता है कि भाई तुम मेरे को टोटल अमाउंट बताओ कितना तुमको रिफंड किया जाए. टर्म फ्रेंडली वो बहुत उसको लगता है मेरी जीत हो गई और मैं बहुत खुश होता है. वेस्टरकॉफ मेक्स ए माइन्यूट कैलकुलेशन. बहुत बारीकी से बड़ा अच्छे से वो कैलकुलेट करके उनको बताता है. वो कैलकुलेट तो पहले से ही करके आया तो बुद्धू थोड़ा ना है ना, चालाक है बस, ज्यादा क्राफ्टी है. and he gives a figure of 6450 crowns, 6450 crowns and 50 heller. ये वहाँ की करेंसी है.
मैथमेटिक्स टीचर अप्लॉड्स हिम फॉर द करेक्ट कैलकुलेशन। मैथमेटिक्स टीचर ताली बजा के उसका वेलकम करता है और वो कहता है कि बहुत बढ़िया जवाब दिया, एंड दिस वाज हिज सेकंड क्वेश्चन। कहता है ये मेरा सेकंड क्वेश्चन एंड इट वाज एक्चुअली ए डिफिकल्ट क्वेश्चन, और ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन था वास्तव में, क्योंकि 12 साल का कैलकुलेशन करके बताना तो डिफिकल्ट क्वेश्चन था। So he has passed, but Westerkopf has given the correct answer to that difficult question. So therefore he is declared a pass in the examination. Westerkopf is now in awesome situation at this declaration. और उसको लगता है he has been tricked, तो उसको उल्लू बना लिया, उसको फंसा लिया by the mathematics teacher. मैथमेटिक्स टीचर ने उसको अपने उसमें ट्रैप में ले लिया। So this amusing play ends with Westerkopf being laughed at by all the professors. So तो play जब end होता है तो उसमें यही दिखाया है कि भाई सब मजाक उड़ा रहे हैं Westerkopf का, and he is being thrown out of the school. So the witty professors outwitted the crafty people. टीचर नेचुरली ज्यादा इंटेलिजेंट है भाई, and he say thus the teachers with their skillful behavior, their efficient behavior, they have saved the reputation of the school by failing the plan of Westerkopf to get the refund of his tuition. So that was all about the play. Now you see the title is the refund, है ना। रिफंड का मतलब सच तो सिंपल ही होता है कि भी पे करना, फीस को वापस जमा करो। नाउ दी रिफंड लिखा है, दी definite article दी has been used, that means a particular situation is there, and when we go through the plot we find कि भी oh it is an unusual situation, है ना। कि ऐसा कभी नहीं होता कि भी एक 40 years old स्टूडेंट जो 40 years का ओल्ड मैन हो गया और वो आ रहा है अपनी फीस का रिफंड लेने, क्योंकि वो लाइफ में कहीं कुछ सेटल नहीं हो पाया, तो उसको लगता है कि उसने स्कूल में कुछ नहीं सीखा, है ना। सो द टाइटल इज क्वाइट अप्रोप्रिएट, है ना। देखो क्वेश्चंस यू कैन गो थ्रू दैट दिस बुक एम्ब्रॉयसा, है ना, दैट इज योर टेक्स्ट बुक एंड द क्वेश्चन विल बी देयर इन द एग्जाम फ्रॉम दिस बुक। What is the principle? Why is the principal upset over Westerkopf's demand for refund of his fees? Refund of fees. Principal is upset because such a situation has never been there in his career as a principal so far. कि अभी तक उसके करियर में इस तरह की सिचुएशन कभी नहीं आई कि कोई 40 साल का आदमी जो इस स्कूल में कभी स्टूडेंट रहा हो और वो अपनी फीस वापस लेने आए, कि भी वो लाइफ में कभी कहीं सेट नहीं हुआ, ये बिजनेस में सेट नहीं हुआ। सो दिस वाज टोटली एन अनयूजुअल सिचुएशन, इट वाज एन एब्सर्ड सिचुएशन, सो दैट्स व्हाई द प्रिंसिपल वाज अपसेट। एंड देन यू विल राइट द स्टोरी कंटेंट आल्सो कि वेस्टरकॉफ जो है वो बहुत बदतमीज था, है ना। he had decided that the teacher should reject him, they should fail him, you know, that's why he was behaving like this, and he was stubborn, जिद्दी था इस बारे में कि भी he is not to get pass. And how does the mathematics teacher design the exam? You understand, है ना। The mathematics teacher has suggested the other teachers also who were to take the re-exam of Westerkopf, okay, they are to pass that student whatever answer he provides. And all the students, when you will go through the text, you will find that all the teachers, they encourage each other. All the teachers, they encourage one another, and thereby they boost up the morale of their fellow teachers. Because Westerkopf is insulting them, he is using names, he is using गाली use करता है वो अपने teachers के लिए, इतनी बदतमीजी से बोलता है, तो फिर भी टीचर्स हंसते हैं और उसको ऐसा दिखाते हैं कि भाई उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना।
वैसा को बार बार इसी बात पर अड़ा हुआ है कि आई नीड मनी, आई नीड मनी। इस तरह से प्ले जो है सिंपल ही है, ऐसा कुछ वो नहीं है। एंड हाउ इट इज ए सटायर अपॉन द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम? इट इज ए सटायर uh, because you see जो स्टूडेंट्स आर्ट्स के होते हैं या अदरवाइज साइंस में भी लो, तो पूरा साल का बिकॉज ऑफ द एनुअल सिस्टम और ट्रिमेस्टर सिस्टम जो एग्ज़ाम है वो 3 घंटे में ही हो जाता है, जिसमें उसका पूरा साल का सिलेबस पढ़ा हुआ वही 3 घंटे में जज हो जाता है और उसको परसेंटेज दे दी जाती है, जिससे ये देखा जाता है कि भी वो कितना एक उसमें वर्क दिए हुए हैं। और जब इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं, जब रिटर्न टेस्ट वगैरह अपीयर होते हैं, तो वो देखा जाता है कि भी हाँ +2 में कितने मार्क्स थे, बीए में कितने मार्क्स थे और एमए में कितने मार्क्स थे। मार्क्स के ग्राउंड पे मेरिट्स बनती है और ये वो, इंस्टेड ऑफ गिविंग मार्क टू द स्टूडेंट्स। एंड थ्योरी पेपर्स में भी ऐसे ही है कि बच्चे प्रैक्टिकल लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को फेस करने लायक नहीं बनते। टीचर्स के ऊपर भी वर्कलोड ज़्यादा होता है और वो सिलेबस पूरा कवर करवाने के उसमें लगे रहते हैं। सो दैट्स व्हाई देयर आर सर्टेन ड्रॉबैक्स। हालांकि अब तो सिलेबस रिवाइज हो गए और बहुत ज़्यादा चेंजेस भी हो रहे हैं, बट द पॉइंट इज दैट व्हेन दिस प्ले वाज रिटन एट दैट टाइम देयर वर सो मेनी शॉर्टकमिंग्स इन दैट एजुकेशन सिस्टम। Still there are, but changes are also being taking place. Critically analyze the theme of the refund. Theme is what? That it is a satire. It is talking about the education system, education and education system, effect of education on in the present day context. How is the plot different from a story? You see, there is a difference between plot and story. Plot में क्या है? Sequence होता है. स्टोरी में सीक्वेंस नहीं। स्टोरी में अगर कोई आपको स्टोरी सुना रहा है तो जो बात बाद में, जो घटना बाद में हुई है वो तुमको पहले बता सकता है और जो पहले हुई है वो बाद में बता सकता है ना? तो उसको स्टोरी कहते हैं। कई बार आप रिकॉल कर रहे हो, है ना, बचपन की कोई बात याद आ गई, चल प्रेजेंट में रहा है, फिर आपने बचपन की कोई कहानी बात ऐसे लंबी सी कोई इंसिडेंट सुना दी, वट एवर जो भी है, तो वो स्टोरी कंटेंट। प्लॉट में क्या है? प्लॉट एक टेक्निकल टर्म है। रफ लैंग्वेज में बात करो तो प्लॉट और स्टोरी में कोई फर्क नहीं होता, है ना, क्योंकि दोनों में स्टोरी बताई जाती है। लेकिन प्लॉट में जो बात पहले हुई है वो पहले बताई जाती है, जो बाद में हुई है वो बाद में बताई जाती है। उसमें यानी कि एक सीक्वेंस, एक थ्रेड होता है ना? जैसे देखो एग्जांपल सिंपल सा, आई से कि किंग डाइड एंड क्वीन डाइड, दिस इज स्टोरी। और अगर मैं कहूँ किंग डाइड एंड देन क्वीन डाइड, देन इट इज व्हाट? प्लॉट। ठीक है, तो ये बात पता होनी चाहिए कि स्टोरी क्या होती है और प्लॉट क्या। प्लॉट में सीक्वेंस होता है, प्लॉट एक टेक्निकल टर्म, और स्टोरी में तो आगे पीछे चलती है, ऊपर नीचे आगे पीछे जैसे सुना रहे हो वैसे ही। ठीक है, सो आल्सो डिस्कस द प्लॉट ऑफ वन एक्ट प्ले। सो हियर इट इज, देखो प्लॉट में, प्ले में तो प्लॉट वैसे भी सीक्वेंस में ही चलता है। जो घटना पहले हो रही है वो पहले होगी, जो बाद में हो रही है वो बाद में होगी। जैसे कि लीडर जो उसका फ्रेंड है वो उसको पहले मिलता है, वही उसको सजेस्ट करता है कि अगर उसको कुछ नहीं आता जाता तो वो स्कूल वापस जाए और रिफंड ले अपनी फीस का, क्योंकि उसने कुछ सीखा ही नहीं। तो उसको वो आइडिया स्ट्रक करता है कि हाँ भाई ये तो बहुत सही बात है कि भाई मैं स्कूल जाके अपनी फीस वापस ले सकता हूँ। उस पैसे से हो सकता है अपना कोई बिजनेस सेट करना चाह रहा हो या जो भी है। तो प्लॉट का ऐसे, प्ले का प्लॉट तो प्ले में प्लॉट है, स्टोरी नहीं है। समझ आई बात? क्योंकि वहां पे तो एक्शन हो रहा है स्टेज पे। आई होप यू अंडरस्टैंड, and I have discussed most of the questions which were there in this textbook after this play. And if you will go through the text, it will be quite easy for you
And if you don't understand any particular phrase or any line, then you can talk to me